Hello guys, so this is the fourth lesson about the gynoecium or the female reproductive part of the flower. And इससे पहले हम लोग देखा हमने कि जो फ्लावर होता है उसके अंदर चार रोल होते हैं जिनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट रोल में हमारा प्रेजेंट होती है सेपल्स और द ग्रीन पोर्शन और द ग्रीन ब्रैक्ट लाइक कवरिंग ऑफ द फ्लावर। सेकेंड रोल इज अबाउट द पेटल्स। पेटल्स होती हैं जो कि जनरली अट्रैक्टिव इन कलरेशन होती है। देन उसके बाद हमने स्टैमन्स देखा, और स्टैमन्स जो होते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन ऑफ द फ्लावर that we already covered in our last lesson. And after that we will consider about the carpel or the female reproductive part. ठीक है, so this lesson is particularly about the female reproductive part or the gynoecium. Why we term as the gynoecium? हम लोग इसको simple carpel या pistil क्यों नहीं बोलते? Because sometime जो आपका flower होता है it can be monocarpels or it can be multicarpellary. इट मीन्स दैट कि उसके अंदर बहुत सारे कार्पल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सिंगल कार्पल भी प्रेजेंट हो सकता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्पल्स वी क्लासिफाइड इट इनटू मल्टीपल टाइप्स। इट मे बी मोनोकार्पलरी कि उसके अंदर आपका सिंगल, अगर आपका एक ही कार्पल प्रेजेंट है तो गाइनोशियम आपका मोनोकार्पलरी होगा। जैसे कि आप किसके अंदर देखते हो, लेट मी चेंज द पेन कलर। Okay, so on the basis of number of carpels, we classify this gynoecium into monocarpellary. Monocarpellary means only the single carpel. Okay, the single carpel is present. Example के लिए you can see in the pea flower, there is only one single carpel is present. It can be bicarpellary. Bicarpellary means two carpels are there. Okay, two carpels are there in flower. For example, in case of Funaria, जो आपका Funaria का flower होता है, in that case you will see that there is two carpels are present. Okay, and it can be multicarpellary, it can be tricarpellary, it can be tetracarpellary, it can be pentacarpellary, it can be multicarpellary. Okay, so we classified into mono, bi and then tri भी होता है, tetra भी होता है. So tri के केस में आप जैसे स्टेलेरिया में देखते हो टेट्रा, आप रेमिनिएशी फैमिली में देखते हो पेंटा कार्पलरी, मेलिया के अंदर आप देखने को मिलेगा। और जो मल्टी कार्पलरी है उसको हम लोग जैसे पैपोवर के अंदर देखने को मिलेगा, मल्टी कार्पलरी। राइट गाइस, मल्टी सॉरी मल्टी कार्पलरी का मतलब होगा कि मोर देन वन कार्पल, मोर देन टू कार्पल, राइट। सो मल्टी कार्पलरी का मतलब मोर देन टू कार्पल। एग्जांपल के लिए आप देखोगे कि इसके अंदर आप जितने भी मतलब दो से ज्यादा जितने भी कार्पल प्रेजेंट होंगे उन सभी कैटेगरी को इंक्लूड कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आपका हो गया पैपोवर, right? Okay, so this is on the basis of presence of numbering of carpels, that how many carpels are there in the flower. We classify the gynoecium into monocarpellary, bicarpellary or the multicarpellary, right? So gynoecium can be mono or multicarpels. Okay, so carpel, if we talk about the single carpel, then all we know that it can be divided into three part, mainly three part. Uppermost region, or we can say that the posterior portion, oh sorry, let me draw a diagram here. रफ एक डायग्राम यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। रफली एक डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ द ओवरी और द कार्पल, ठीक है। Now you can see this is the uppermost region. This uppermost region is termed as, this region is stigma. A stalk-like structure below the stigma is known as the style, and below that ovary is present, which consists of a number of ovules. It depend that what kind of flower are there. So उस पे डिपेंड करेगा कि कितने वहाँ पे ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, sometime there is only single ovule is there, but sometime multi ovules are also present, okay, in the flower. But if we talk about we can say that the model of the carpel, then we will consider that there is a uppermost region which will consider the stigma, which act as a base for receiving the pollen grain.
Okay, and there is a stalk like structure which is termed as style, जिसके थ्रू आपका पॉलन ग्रेन पास आउट होता है, पॉलन ट्यूब की हेल्प से जो मेल न्यूक्लाई है वो पास आउट होगा. देन एट द बेस रीजन देयर इज ओवरी विच कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल्स. इट कैन बी वन और टू और मोर देन टू, राइट? इट डिपेंड दैट what diversified of your flower is there. Okay, सो इसके बेस के ऊपर हमने तीन टाइप में क्लासिफाई तो कर दिया. अब हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे हमने एंथर के केस में देखा था, जो हमारा स्टैमन था उसके केस में देखा था कि उनके अंदर जो फिलामेंट है वो आपके फ्यूज फॉर्म में भी प्रेजेंट थे, फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट थे. यानी कि जो स्टेमन था वो आपका फ्यूज फॉर्म में भी प्रेजेंट था और फ्री भी प्रेजेंट था. सेम केस यहाँ पे आपको गाइनोशियम के केस में देखने को मिलेगा कि जो आपका गाइनोशियम है वो आपका फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूज फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है. So on that basis we classify the gynoecium into, let me erase all these type. Okay, so on the basis of whether the carpel is fused form or in the free form, we classify the gynoecium into two type, mainly two type. First one is syncarpus, second one is apocarpus. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? syncarpus means free, not sorry, free not fused. Okay, yes, yes, syncarpus means fused carpel and apocarpus means free carpel, right? ये किस बेसिस के ऊपर हमने क्लासिफाई किया है? ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूज्ड और फ्री फॉर्म ऑफ कार्पल. यहाँ पे आप फॉर्म लिख लीजिए, ठीक है, राइट. सो इन समरी फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और वी कैन से दैट द इनरमोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर. इट कैन बी made up of more or it can be made up of one or more carpel. That's why हम लोग इसको monocarpellary या multicarpellary कह देते हैं. कार्पल के अंदर एक स्टैंडर्डाइज्ड कार्पल के अंदर तीन पार्ट होते हैं, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है. फर्स्ट वन इज द स्टिग्मा विच इज द अपर मोस्ट रीजन विच रिसीव द पोलन ग्रेन, ओके, आफ्टर द डिविजन ऑफ द एंथर्स. Then there is a stalk like structure which will consider as the style, जिसके थ्रू आपका जो मेल न्यूक्लाई है वो पास आउट होता है. Then at the base region there is ovary present which consists of the ovule. Ovule जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे, और डिपेंड करता है कि आपके एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा, यहाँ पे मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है. Ovary is the enlarged basal part on which lie the elongated tube and the style, right? ये आपका इसके बेस के ऊपर भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं गाइनोशियम को कि किस तरीके से स्टाक का अरेंजमेंट है आपके ओवरी के साथ में, जो स्टिग्मा प्रेजेंट है वो किस तरीके का अरेंजमेंट शो करी है. इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे गाइनोशियम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं. सो द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा. ये तुम्हारा बेसिक चीजें हो गई कि जो ओवरी है और वो स्टाक के साथ कनेक्टेड होता है. जो स्टाइल है वो आपका अपर रीजन से, अपर मोस्ट रीजन से स्टिग्मा के साथ कनेक्टेड होता है. द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इट इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन्स, ठीक है. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, मैं आपको स्ट्रक्चर समझाती हूँ. यहाँ पे अगर हम लोग कार्पल की बात करते हैं, द अपर मोस्ट रीजन इज स्टिग्मा, ठीक है, ये हमारा स्टिग्मा हो गया, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, राइट. देन स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्टाइल बोलते हैं. देन उसके बाद हमारे होते हैं ओवरी, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, ठीक है. ओव्यूल्स या फिर जिसे हम मेगास्पोरेंजिया या मेगास्पोर्स मदर सेल्स बोलते हैं, जो क्या करती हैं, ओव्यूल को प्रोड्यूस करती है. मेगास्पोरेंजियम जो मदर सेल्स होती हैं वो मेगास्पोरेंजिया को प्रोड्यूस करती हैं, जो फर्दर जाके हमारा फर्टिलाइज होगा मेल न्यूक्लियाई के साथ और फॉर्मेशन करेगा सीड की, ठीक है. अब जब हम गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम को हम लोग क्लासिफाई करते हैं. देखो वन बाय वन इसके तीन पार्ट हो गए. फर्स्ट वन दिस वन, सॉरी दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड. सो पहले बात कर लेते हैं स्टिग्मा की. स्टिग्मा
गायनोशियम के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट है, मतलब आपका जो स्टिग्मा है वो किस तरीके की एक शेप या फॉर्म दिखा रहा है, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टिग्मास उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, उस बेसिस के ऊपर हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं। वो क्लासिफिकेशन हमारा क्या होगा, यहाँ देखिए, टाइप ऑफ स्टिग्मा के बेस के ऊपर, टाइप ऑफ स्टिग्मा का मतलब जो स्टिग्मा है वो किस तरीके की शेप यहाँ पे दिखा रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ स्टिग्मा वी कैन क्लासिफाई द गायनोशियम इनटू मल्टीपल टाइप्स। फर्स्ट वन इज कैपिटेट। कैपिटेट कब होगा, अगर आपका जो स्टिग्मा है वो सरफेस से ग्लोबुलर शेप अगर वो शो कर रहा है ना, तो वो आपका कैपिटेट टाइप का होगा। देखो स्टिग्मा जो होता है वो एक रिसेप्टिव सरफेस की तरह काम करता है, उसका काम है पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। सो जो स्टिग्मा होगा वो जनरली अपना मॉडिफिकेशन करता है किस हिसाब से कि भी किस स्पीसीज का वो है, वो किस टाइप के पॉलन ग्रेन को उसे रिसीव करना है, किस टाइप के पॉलिनेटर वहां इन्वॉल्व है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बट इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करने के लिए स्टिग्मा के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, ताकि वो मैक्सिमम वहां पे चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाए टू रिसीव द पॉलन ग्रेन। ठीक है, सो ऑन दैट बेसिस हम लोग मल्टीपल टाइप में स्टिग्मा को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन हमारा हो गया कैपिटेट टाइप। कैपिटेट टाइप में क्या होगा कि जो स्टिग्मा होगा उसकी कुछ ग्लोबुलर शेप होगी। प्लूमोस टाइप के अंदर आपको कुछ इस तरीके की शेप देखने को मिलेगी कि मल्टीपल वहां पे फोरस प्रेजेंट है, और ये आपका मैक्सिमम नंबर को, इससे क्या हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन को वो रिसीव कर सकती है। बीफिड टाइप में क्या होगा, बाइफिड टाइप के अंदर बाइफिड यानी कि दो यहाँ पे उसके जो स्टिग्मा है उसके दो यहाँ पे फरिकेशन हो गया, मतलब दो उसके अंदर वो डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे देखो ये सरफेस आपको दिख रहा है जैसे स्टिग्मा के अंदर यहाँ पे दो फरो बन के ये आपका स्टिग्मा डिवाइड हो गया, बाइफिड टू ट्रांसवर्स सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो गया। देन उसके बाद ट्राइफिड यानी कि अगर उसके अंदर तीन लेयर है वो तीन के अंदर डिवाइड हो गया तो ट्राइफिड हो गया। डिस्कॉइड हो गया, अगर उसका सरफेस एक डिस्क जैसी स्ट्रक्चर को बना रहा है तो डिस्कॉइड हो गया। डम्बल शेप, इट कैन बी डम्बल शेप। डम्बल शेप कैसी होती है, ये आपकी डम्बल शेप होती है। ठीक है, फनल शेप भी हो सकता है कि फनल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगी, या आपका स्ट्रिएटेड टाइप का भी हो सकता है। सो इट डिपेंड कि आपकी पॉलन ग्रेन किस टाइप के हैं, पॉलिनेशन कैसे होने वाला है, पॉलिनेटर कौन से हैं। जो स्टिग्मा है उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, और उसी मॉडिफिकेशन के बेस पे हम लोग स्टिग्मा को डिवाइड कर देते हैं, दैट इट कैन बी कैपिटेट टाइप, इट कैन बी प्लूमोस टाइप, इट कैन बी बाइफिड, ट्राइफिड, डिस्कॉइड, स्ट्रेटेड, या फनल शेप या डम्बल शेप, राइट। फिर उसके बाद सेकेंड जो पार्ट है हमारा दैट इज स्टाइल। अब स्टाइल जो है, ये स्टार्क जो प्रेजेंट है, ये स्टाइल जो प्रेजेंट है, इट कैन बी, जो आपकी स्टाइल है इसका देखो पहली चीज तो ये कि ये आपकी फ्यूज्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है और अनफ्यूज यानी कि फ्री भी हो सकती है। फ्यूज्ड और अनफ्यूज का मतलब जैसे सिन कार्पस के अंदर जो आपके कार्पस थे वो फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट थे, तो वहां पे आप देखोगे कि जो हमारी स्टार्क है वो फ्यूज होती है एक दूसरे के साथ, जो बहुत सारे कार्पल्स वहां पे प्रेजेंट है उनकी एक दूसरे के साथ फ्यूज होती है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। अगर वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो अब बात आती है कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है कहाँ पे है, उसके बेस के ऊपर भी हम लोग डिवाइड करते हैं। पोजिशन ऑफ स्टाइल के बेस पर भी हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, पोजिशन ऑफ स्टाइल। Style can be classified on the basis of position। कौन कौन से टाइप होंगे, फर्स्ट वन हमारा होगा इट कैन बी टर्मिनल, इट कैन बी लेटरल, एंड इट कैन बी गाइनोबेसिक। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो स्टाइल होता है, हमने पहले ही देखा जो स्टाइल है वो अपने बेस रीजन से यहाँ से ओवरी के साथ कनेक्ट है और यहाँ से वो स्टिग्मा के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो ओवरी के साथ कनेक्ट होता है तो उसका ये ओरिजिन पॉइंट होता है। इट डिपेंड कि उसका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, अटैचमेंट पॉइंट कौन सा है, हम लोग उसे डिवाइड कर देते हैं, टर्मिनल है, लेटरल है या गाइनोबेसिक है। अब टर्मिनल कब कहेंगे, स्टाइल को हम लोग टर्मिनल कब कहेंगे, व्हेन इट इज अपराइट इन इट्स पोजीशन। अपराइट का मतलब इट अराइजेस ऑन द टिप ऑफ द ओवरी, दिस इज ओवरी, और अगर यहाँ से ये ओवरी का टिप रीजन है, ठीक है, ये इसका टिप रीजन है, अगर इस टिप रीजन के साथ ही यहाँ से अटैच हो रही है या इसका ओरिजिन पॉइंट टिप रीजन है, तो हम उसे बोल देते हैं टर्मिनल, यानी कि अपराइट इन पोजिशन।
सेकेंड जो होगा लेटरल, लेटरल का मतलब आइदर दिस साइड और आइदर दिस साइड, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, इधर से अगर आपका ये स्टाइल जो है इससे अटैच होगा या इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे होगा तो हम लोग उसको बोल देते हैं लेटरल साइड। मतलब लेटरल साइड का मतलब अराइजेस फ्रॉम वन लेटरल साइड ऑन एन ओवरी, ठीक है। जैसे कि आप मैंगो या स्ट्रॉबेरी के अंदर देखते हो, चलो मैं एग्जांपल भी आपको साथ साथ बता देती हूँ। टर्मिनल के केस में आपने देख लिया, आप लेटरल के केस में देखिए जैसे मैंगो स्ट्रॉबेरी हो गई। गाइनोबेसिक का मतलब क्या होगा, गाइनोबेसिक यानी कि ओवरी के बेसल पार्ट पर, गाइनो का मतलब ओवरी एंड आपका बेसिक का मतलब बेसल पार्ट। अगर स्टाइल अराइज हो रही है डायरेक्टली फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओवरी फ्रॉम द थैलेमस, तो हम लोग उसे बोल देते हैं कि हमारा गाइनोबेसिक टाइप है। डायरेक्टली थैलेमस का मतलब ये थैलेमस रीजन होता है, दिस इज द थैलेमस रीजन, ये वाला जो रीजन है, लेट मी चेंज द पेन कलर, यस ये हमारा जो होता है ना ये थैलेमस रीजन होता है, ठीक है। अगर ये स्टाइल डायरेक्टली ऐसे अगर इलोंगेटेड होके, सेकेंड, अगर ये स्टाइल आपका डायरेक्टली इलोंगेटेड होके क्या कर रहा है, ऐसे अगर डायरेक्ट आके ये थैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि ये हमारा किस टाइप का है, गाइनोबेसिक है। गाइनोबेसिक क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके थैलेमस के साथ कनेक्टेड है। इसका जो ओरिजिन पॉइंट है या अटैचमेंट पॉइंट है वो कहाँ है, थैलेमस से डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टाइल। अब ओव्यूल्स की बात करें तो ओव्यूल के बेस के ऊपर भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है कि भी आपका जो गाइनोशियम है उसके अंदर किस तरीके से प्लेसेंटेशन हो रखी है, कि किस तरीके से वो प्लेसेंटा के साथ अटैच है, आपका सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल के क्या क्या स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डीप में है, वो मैं आपको अलग वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगी। सो हम लोग इसको एक समराइज फॉर्म में कर लेते हैं गाइनोशियम को, कि गाइनोशियम जो है उसके अंदर हमने अभी क्या क्या कवर किया। हमने देखा जो गाइनोशियम होता है इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपर मोस्ट द स्टिग्मा, देन स्टाइल, उसके बाद ओवरी। सो हमारा स्टाइल के स्टिग्मा के बेस पर हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं कि आपका किस टाइप का स्टिग्मा प्रेजेंट है, उसके ऊपर उसकी मॉडिफिकेशन फॉर्म के ऊपर हम बोल देते हैं कि हमारा बाइफिड है, ट्राइफिड है, कैपिटेट टाइप है, या हमारा डिस्कॉइड है या फनल शेप है, किस टाइप की शेप वो दिखा रहा है, किस टाइप का शेप में आपका स्टिग्मा प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो ओवरी मतलब जो हमारा कार्पल है वो किस तरीके का है, ठीक है। ये हमारी पहली चीज हो गई। सेकेंड हमने कहा स्टाइल, स्टाइल की अगर बात करें तो स्टाइल कैन बी आपका फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, और जो स्टाइल है उसकी बेस पे हम डिवाइड कर देते हैं कि आपका जो कार्पल है वो टर्मिनल स्टाइल है उसके अंदर, या फिर लेटरल साइड है, लेटरल साइड से प्रेजेंट है, मतलब उसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आपका लेटरल साइड से आ रहा है, गाइनोबेसिक हो सकता है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्पल्स के बेस पे हमने क्लासिफाई किया गाइनोशियम को, जिसके अंदर में देखा इट कैन बी मोनो कार्पिलरी, इट कैन बी मल्टी कार्पिलरी, राइट। सो ये हमारा हो गया गाइनोशियम, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। और ओवरी की अगर आप बात करें तो ओवरी के अंदर देखो यहाँ से यहाँ पे आपका जो ओव्यूल है वो प्रेजेंट होता है। ओव्यूल इस तरीके आपका कुछ ओव्यूल की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, जिसके अंदर आप देखोगे कि एग सेल यहाँ प्रेजेंट होगी, यहाँ पे 2 सिनर्जीड्स प्रेजेंट होते हैं, बीच में हमारे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे आपकी सेल्स प्रेजेंट होती है, एंटीपोडल सेल्स, राइट। 2 एंटीपोडल सेल्स होती है एक्चुअली, नॉट 3, ठीक है। 2 एंटीपोडल सेल्स होती है यहाँ पे, ओके, यस। सो यहाँ पे हमारी 2 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये कुछ इस तरीके की आपके ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर्स होती है, और ये यहाँ से कनेक्ट होते हैं, नोट यहाँ से एक्चुअली इसकी आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसकी कवरिंग प्रेजेंट होती है, तो ये प्लेसेंटा से आपका कनेक्टेड होता है, प्लेसेंटा की हेल्प से ये कनेक्टेड होता है आपके ओवरी के साथ, यानी कि ओवरी और जो ओव्यूल्स है वो प्लेसेंटा के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये ओव्यूल प्रेजेंट होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो उसमें आपको प्री चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे कि सबसे पहले जो स्टिग्मा है वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा, पॉलन ग्रेन रिसीव करने के बाद उसमें पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, और ये पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन के बेस पे भी हम लोग गाइनोशियम को डिवाइड कर सकते हैं। समटाइम क्या होता है जो हमारी स्टाइल होती है ना, स्टाइल आपकी होलो है या बॉडी टाइप है, मतलब ये कि जो स्टाइल है इसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, राइट।
कुछ इस तरीके से स्टाइल के अंदर आपकी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब अगर ये स्टाइल आपकी सिर्फ मतलब जो एपिडर्मल रीजन है वहां मतलब जो सेल्स है वो एपिडर्मल रीजन पर प्रेजेंट है, लेकिन बीच में कैविटी लाइक अगर ये स्ट्रक्चर बना रही है तो आपका इजिली जो पॉलन ट्यूब है वो आराम से इलोंगेट हो सकता है। तो इस टाइप का जो गाइनोशियम होगा, जिस इस टाइप का जो स्टाइल है उसके बेस पे हम लोग बोल देते हैं कि हमारा जो स्टाइल है वो कैसा है, होलो स्टाइल है। मतलब जो कार्पल है वो होलो कार्पल है। कैसे है कि उसके अंदर से अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है जिसके थ्रू इजिली जो पॉलन ट्यूब है वो ग्रो कर सकती है, इलोंगेट कर सकती है, ताकि वो इजिली आपके ओव्यूल तक पहुंच सके। सेकेंड कंडीशन क्या होगी कि एपिडर्मल सेल्स के साथ साथ में उसमें बीच में भी सेल प्रेजेंट होगी। अब बीच में सेल प्रेजेंट है मतलब ये कि इसके अंदर पूरी बॉडी बनी हुई है, इसमें बीच में होलोस्फीयर नहीं प्रेजेंट, जिसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई कैविटी नहीं है। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं बॉडी, बॉडी टाइप का स्टाइल है, यानी कि अंदर से सारी सेल्स कवर है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग करते हैं कि हमारा जैसे ही स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा, यहाँ पे वो फ्यूज हो जाएगा और यहाँ से जो पॉलन ट्यूब है ग्रो करेगी। पॉलन ट्यूब के थ्रू जो मेल न्यूक्लियाई है वो पहुंचता है डायरेक्ट ओव्यूल के पास। ओव्यूल के पास आने के बाद वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द गाइनोशियम पोर्शन एंड आई होप you guys understand this properly. And thank you so much guys for watching this video, and if you like this video then please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.